So what is difference between ng serve and ng build? So ng build are used for building our application for deployment purpose. So if you want to deploy our application, so we use ng build, and it will create a folder, this folder for the deployment. And ng serve is used for serving our application locally, so it will not create any folder or uh, any so it will not create any folder, and it will only compile in memory, application memory. But okay, Okay. sir. So That's it. okay. Suppose I want to update the folder name this to my name, UI Dev Guide. So where Okay. I have to do update that name. For that, no, sir, I have the idea for it. I think we have to go in angular.json. Hmm. I think there is a I am not remembering the key name. So we will update, sir. We can update. But in I am not remembering नहीं, at that time. अपडेट तो कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। कहाँ से करना है वो पूछ रहा हूँ। वो angular.json से आउटपुट, ही कर सकते हैं। हाँ, आउटपुट angular.json में पाथ। ही पर कॉन्फ़िगर। हाँ, देयर इज आउटपुट पाथ की। ओके, वेयर वी ओके, हैव टू अपडेट द name of your folder and the path of your folder. Okay, so based ओके on सर, that it will generate it. ओके सर। Okay, so suppose I want to generate my Angular build for different environments. So how can I do this? So we have a environments file in our Angular application. We can use ng generate environments for, so it will generate our environments for us, and in that we can pass our like deployment environments, production environments, and these environments we can create. And for at the building time, we can ng build, we can write command ng build hyphen hyphen configuration and equal to environment's name. And angular.json we also write for the this, so in configurations also. Okay, so any idea what are the things we have to write over there? Yes, but I am not remembering actually I am not remembering the key name also Okay. for that. There is a, I can show you, I can show you if you want to. नहीं नहीं नहीं, आप देख के तो सबको पता चलेगा ना। Okay, sir. तो तुमको ही पता चल रहा है, that's fine. Okay, then we'll talk to the about some other questions, latest Angular questions then. Okay. Okay, sir. So what are the new control flows Angular has just released? At if and at for, sir. That's it. And and the at switch. Okay, sorry. Okay. So what is difference between ng for and at the rate for? So difference between ng4 and 4. So for ng, if ng4 we have to write. Suppose we want to iterate some li text. So and if you want to use ng if also on that text, so we have to write another div or another ng नहीं नहीं यार, container for it. wait. If you don't know the answer, that's fine. Just just don't answer if you don't know proper. Okay. मैंने जस्ट बस मैं जो पूछ रहा था ना आपको अभी, इसमें क्या हुआ ना, एट द रेट फॉर में है ना, उसको आपको एक की भेजना पड़ता है ट्रैक बाय करके, वो कंपलसरी। हाँ, एनजी फॉर में वो कंपलसरी नहीं था, करेक्ट। हाँ सर, दैट्स इट, ये व्हेन यू ये एक्चुअली कंपलसरी दैट। ट्रैक कब करके कंपलसरी कर दिया गया है इसमें। हाँ, तो सो दिस इज व्हाट आई वाज बीन एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर। ओके, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट सिग्नल्स देन। ओके। So what do you think why they have introduced signals?
Signals. Before signals, we use change detection cycle for detecting the changes. So for signals, we don't have to rely on the change detection or ng-zone .js files. Hmm. So that's why for and using signals, we optimize our application, increase our performance of our applications. ओके, बट आपको पता है व्हाट इज सिग्नल्स प्रॉपर? आपने जो बोला Yes, वो sir. करेक्ट है ऐसे? Yes, sir. Signal is a wrapper around our value, and which we can say which uh, mm, I'm not getting word. So ओके, इसका एक बार पढ़ाई करो अच्छे से। ओके सर, नहीं वो हम क्या होता है कि सिग्नल्स में जब भी हम सिग्नल्स को ये करते हैं, जैसे कि सिग्नल्स क्या होता है कि जब भी हम उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे वो सिग्नल्स चेंज होता है ना, तो ऑटोमेटिकली वो उसको ये कर देता है, नोटिफाई कर देता है कि कुछ चेंजेस हुआ है वैल्यू में। ओके, एनीथिंग एल्स? And we have a method signal, we have a computer signals also, so we can compute our signals using computer signals. And we can also set value for using set method, and we can update value using update method in signals. ओके, so these are the some utilizations for a signal, correct? But Okay sir. my question was a core question. Okay. तो उन्होंने सिग्नल क्यों लाया, मतलब क्या बेनिफिट्स है उसके? ओके, उसका रीड थोड़ा सा पढ़ाई करो अच्छे से। ओके, Okay. उसके बाद अभी जो आपने चेंज डिटेक्शन बोला ना, तो उसमें सिग्नल का क्या बेनिफिट्स है अभी, विथ Okay. प्रॉपर एग्जांपल आप उसको प्रिपेयर करो अच्छे से एक बार, करेक्ट? तो थोड़ा सा ना Okay sir. आपको एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। यूज Okay तो sir. सिंपल है, सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कंप्यूटेड सिग्नल से वैल्यू लेके कंप्यूटेड में अपने आप उसको रीड ओनली में भेज देता है। सो हमको वो आरईजीएस वाला वो सीन नहीं चाहिए बार बार कि वैल्यू चेंज होने के बाद उसको उसको नोटिफाई करो। सो सिग्नल Yes sir. इजी होता है इससे, करेक्ट? तो Okay sir. थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो इसको। ओके, Okay sir. एंड अपडेट करने के लिए जैसे मैंने बोला ना, अभी समझ लो आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो एंगुलर Hmm. 15 है, आपको अभी उसको स्टैंड अलोन में मूव करना है पूरा का पूरा। Okay. तो उसके भी कमांड्स है, उसके लिए भी आप कमांड्स रन करके पूरा एप्लीकेशन माइग्रेट कर सकते हो। वो क्या करता है, एक कमांड में आपके सब मॉड्यूल उड़ाता है, एक कमांड में आपके इंपोर्ट्स अपडेट करता है, और एक कमांड Okay. में आपका एप्लीकेशन प्रॉपर जहाँ जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के नीडेड है वो उसको प्लेस करता है। जैसे मेन डॉट Okay. पीएच फाइल चेंज होता है आपका, एंगुलर डॉट जेएसपी Hmm. चेंज होता है आपका, हाँ, दूसरा। कॉन्फ़िग फाइल भी आता है ना, कॉन्फ़िग फाइल राउट्स फाइल अलग अलग हो जाते हैं फिर। यस यस, तो ये सब कोर चीजें जो है ना, उस पे थोड़ा फोकस करो अच्छे से, करेक्ट? ओके सर। तो ओके सर। देखो, बेसिक क्वेश्चंस तो हर कोई पूछेगा कि राउटिंग क्या है, कैसे वर्क होता है। यस तो सर। आप थोड़ा सा, अगर कोई बंदा है जिसने सच में अच्छे से काम किया है, उसको इंटरव्यू अच्छे से लेना है, तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, करेक्ट? तो जैसे आप अगर बोलते हो एंगुलर 18 में काम कर रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी यू विल गेट ऑल दिस क्वेश्चंस, एटलीस्ट ओके सिमिलर सर। क्वेश्चंस। सो ओके सर। दोज, ओके। और अबाउट एंगुलर, जैसे अभी हमने सिग्नल के बारे में बात किया, डिफर लोडिंग के बारे में बात किया, तो थोड़ा सा ना उनको अच्छे से डीप में पढ़ो, कैसे वर्क ओके सर। करते हैं, क्या करते हैं। तो सर यूज़ तो मैं कर ही रहा हूँ, मुझे पता है इनकी वर्किंग क्या होती है, बस वो आंसर देने में थोड़ा इधर उधर हो जाता नहीं नहीं नहीं, देखो प्रैक्टिस करोगे, मैं इसीलिए तो आपको मैंने स्टार्टिंग में पूछा ना कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। है। सो आई थिंक वी हैव पुश्ड सम ऑफ द वीडियोस बेस्ड ऑन द सिग्नल्स एज वेल, ओके? तो ओके सर। I do added the Canva slides as well in the interviews, so you can read those as well once. ओके। Okay. Okay, I think that's it from my side. Do you have any question? सर मैंने एक रिज्यूमे क्रिएट किया है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. सो ये मेरा नया रिज्यूमे है, तो इसको आप रिव्यू कर लीजिए एक बार। Okay. आपका ना जो लिंक है ना ऊपर वाला, वो ओपन होता है कि चेक करो लिंक्डइन का। लिंक्डइन लिंक्डइन का? क्लिक नहीं, करो। ये ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने देखा था ये। आपने रिज्यूम मुझे दूसरा दिया है फिर।
हाँ, आपको मैंने दूसरा दिया है, मैंने ये अभी जस्ट बनाया है। ओके। अ, ठीक है, एक मिनट का गो थ्रू करता हूँ। प्रोफेशनल समरी आपने डाला है, टेक्निकल डाला है, कंपनी का डाला, नीचे स्क्रॉल डाउन करो, एक ही कंपनी है ना आपका? आई थिंक एक पेज का ही होना चाहिए। हाँ हाँ, ये फर्स्ट कंपनी है। ठीक है, फिर तो ठीक है ना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एकेडमिक्स है, प्रोजेक्ट्स आपने डाला है नीचे। बस एक ही पेज का है। और एट द टॉप पे आपका ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, हाँ लिंक्डइन है। आई थिंक ठीक है। आई थिंक आपने वो मैंने जो दिया था उसी में से अपडेट किया गया है। हाँ, वो थोड़ा हाँ। बहुत उसका रेफरेंस लिया है और ये किया है। हाँ, यस यस। हाँ हाँ थोड़ा सा मैचिंग लगा मेरे को, इसलिए पूछा। हाँ। नहीं, अब ठीक है वो ना। बोलते रहते हैं ना कि प्रोजेक्ट लास्ट में डाल दो, प्रोजेक्ट लास्ट में डाल दो, तो मैंने उसको। हाँ, क्योंकि देखो, अगर आपने देखो मेरे पास अभी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, करेक्ट? तो अभी मैं मेरे पहले अच्छा। कंपनी का प्रोजेक्ट डालूंगा ना, तो कुछ मैटर नहीं करता है ना अभी, करेक्ट? हम्म क्योंकि मैं तो सजेस्ट करता हूँ लास्ट के दो ही प्रोजेक्ट डालो। क्यों क्यों हम्म। रिज्यूम को बड़ा करना है? क्योंकि इंटरव्यूअर तो आपको स्किल्स देख के इंटरव्यू पूछेगा ना, क्वेश्चन तो वो ना यस सर। प्रोजेक्ट पूछेगा, तो यस नॉट सर। टू ऐड दोज। हम्म। ठीक है। ठीक है, और फीडबैक्स। फीडबैक तो एंगुलर का थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करो, और जावास्क्रिप्ट का कहाँ कहाँ पे आपने अभी जो आंसर दिए ना प्रॉपर दिए हैं, लेकिन उनको ना थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। थोड़ा ओके सा सर। लेंदी हो जाता है कभी कभी आंसर। ओके सर। हाँ, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से ट्राई करोगे ना तो और इजी रहेगा फिर। ओके सर। और इंग्लिश तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं लगा है, लेकिन अभी देखो कॉन्फिडेंस तुम पे है। अभी तुम अगर सोचोगे कि भाई आज का इंटरव्यू मैंने पूरा इंग्लिश में बोला है, अच्छे से बोला है, करेक्ट, हम्म। तो तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको अभी मैं बोल दूंगा कि नहीं आपका इंग्लिश खराब है, तो आप फिर से डाउन हो जाओगे, तो ऐसे कुछ नहीं है। आपका इंग्लिश था मतलब सॉर्टेड था, एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए अच्छा है, तो ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, कुछ बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू के इस पे है ना यूट्यूब पे, तो उनको गो थ्रू करते रहो, ठीक है। हाँ, तो मैं उनका वीडियोस देखता रहता हूँ सारे। आंसर देने का ट्राई करते रहो, करेक्ट, तो इजी रहेगा फिर आपके लिए। ठीक है सर। ओके, कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे डीएम करना इंस्टाग्राम पे। तो मैं ओके सर। मैं यूजुअली रिप्लाई करता हूँ सभी को, ओके जैसे ओके मुझको सर। दिखता है वैसे, तो वहां पे पिन कर सकते हो आप। ओके। ठीक है। ओके, और थोड़े दिन बाद और में वापस बुक करता हूँ, देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है। हाँ, चलेगा, नो वरीज। थोड़ा सा हाँ। मैं थोड़ा एंगुलर का पूछूंगा, जावास्क्रिप्ट तो मोस्टली हो जाता है, तो एंगुलर का थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं फिर।